IPR 1956 industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules, and regulations for controlling industrial enterprise of the country. After IPR 1948, Indian economy had to face series of economic and political changes. 1948 में IPR तो आ गई थी, बट उसके बाद काफी चेंजेस आए. प्लानिंग कमीशन ही उसके बाद सेटअप हुआ था. Political changes आए, economic changes आए, which necessitated the need for a fresh industrial policy for the country. So on 30th April 1956, second industrial policy resolution was adopted in India, which also formed the basis of the second 5-year plan. So very, very important. IPR 2 से second industrial policy resolution बोला जाता है 1956. कब? 30th April 1956 formed the basis for the second 5-year plan. 1956 policy emphasized the need to expand the public sector. Very, very important change. जो major change आया था, classification of industries. Industries की classification में क्या? Schedule A, Schedule B, Schedule C. Industrial classification करी. According to IPR 1956, the industries were reclassified into 3 categories: Schedule A, Schedule B, and Schedule C. Schedule A में क्या कहना था? This first category comprised industries which would be exclusively owned by the state. मतलब Schedule A में वो industries डाल दी जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही ऑपरेट हो सकते हैं. मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले वो काम नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर वाले वो काम नहीं कर सकते. In this schedule, 17 industries were included, like arms and ammunition, atomic energy, heavy and core industries, aircraft, oil, railways, shipping, etc. आपको एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए. तो वाइटल इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया ये तो हम ही चलाएंगे, ये हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ नहीं दे सकते, वरना वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो अपने प्राइसेस चार्ज करेंगे, ये चीज हम खुद ही करेंगे. जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग, एटसेट्रा. दिस इज 1956. शेड्यूल ए, exclusively state owned. Schedule B, ट्रांजिशन कि पब्लिक सेक्टर आएगा, वो चीज को काम करेगा उस सेक्टर में, उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, बट इवेंचुअली पर्पस है कि प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना. प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप होगा. शेड्यूल ए में प्राइवेट सेक्टर नहीं ऑपरेट कर सकता, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है. शेड्यूल बी में गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर करे, बट इनिशियली क्योंकि वो सेटअप नहीं कर रहे तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेटअप करके देगा, फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा. शेड्यूल बी, तो ये याद रखना है, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड which would be progressively state owned. The state would take the initiative of setting up the industry setup initiative कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी. And private sector will supplement efforts of the state. वो अपना add on करेगा उस चीज पे. This schedule includes industry like aluminium, other mining industries, machine tools, fertilizers, etc. Schedule A, 17 industries exclusively state owned. Schedule B, 12 industries progressively state owned, initially set up by the public sector, then complemented by the private sector. Schedule C गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी. बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी कि बाकी तुम कर लो, बट जिसका मन करे वो कर ले. नो, उसमें भी उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. शेड्यूल ए में तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो आप काम कर ही नहीं सकते. शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज हैं जो इनिशियली गवर्नमेंट सेटअप करेगी, बट धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेंगे एंटर करने के लिए.
शेड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, बट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा. Schedule C, this schedule consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of licenses enforced under Industrial Development and Regulation Act of 1951. लाइसेंसेस इशू होंगे, आपको नया काम करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा. आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, आप रजिस्टर्स बना रहे हैं, आप पेन भी बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. नए प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा. आपकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स पर मंथ, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, 20,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो नया बिजनेस सेटअप करना है, लाइसेंस चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो भी लाइसेंस दोबारा बनेगा. एक्सपेंशन करनी है तो भी लाइसेंस दोबारा बनेगा. तो गवर्नमेंट ऐसे कंट्रोल करती थी, रेगुलेट करती. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर आईपीआर 2, अंडर आईपीआर 1956. इस पे अलग से क्वेश्चन बनता है, याद होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड. क्या थी शेड्यूल ए में, कितनी थी, क्या एग्जांपल्स हैं, बी सी. इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा.